राइट, हम ब्रिज रेक्टिफायर को हम स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम। उसका डिटेल में हमने ऑपरेशन देखा था। वी नोटिस्ड के ब्रिज रेक्टिफायर के केस में यू गेट टू डायोड ड्रॉप एट द आउटपुट। सो द आउटपुट इज टू ड्रॉप्स डाउन relative to the input signal. So positive swing के corresponding you get a positive output, and negative swing के corresponding भी you get a positive output. So as a consequence you get a full wave rectifier. So full wave rectifier is a rectifier that take advantage of both positive and negative swings. Positive swing उसी तरह translate हो जाती है और negative swing invert होके translate हो जाती है. So V out you get a unipolar output voltage V out. So V out is unipolar here, so this can be used as a rectified circuit. So इसमें सिर्फ एक पॉइंट रह गया था लास्ट टाइम जो कि आपका PIV था. So let's determine PIV. Let's suppose कि हम D3 की PIV निकालना चाहते हैं. So पहले ये बताइए कि अगर आप D3 की PIV निकालना चाह रहे हैं, so PIV is maximum of the reverse voltage across the diode D3. So D3 के हम PIV निकालना चाह रहे हैं, तो कौन सी स्विंग हमें कंसीडर करनी चाहिए? शुड वी कंसीडर द पॉजिटिव स्विंग और द नेगेटिव स्विंग? वी आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग PIV फॉर डायोड D3. जी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कौन सा हमें करना चाहिए? पॉजिटिव स्विंग को देखना चाहिए या नेगेटिव को देखना चाहिए? पॉजिटिव को, राइट? वाई? बिकॉज पॉजिटिव स्विंग के दौरान वी नो के ड्यूरिंग द पॉजिटिव स्विंग D1 D2 आर फॉरवर्ड बाइस्ड while D3 D4 are reverse biased. And since we are saying so अब देख सकते हैं कि for positive swing D3 is reverse biased, so that's why we have selected the positive swing here, क्योंकि हम D3 की PIV निकालना चाह रहे हैं. So PIV के लिए आपने reverse voltage देखनी. So let's label the reverse voltage here. So reverse voltage means के plus at the cathode minus at the anode. So this is VR D3. Since D2 is forward biased corresponding to the positive swing, तो ये आपके पास VD है. D1 भी फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो ये भी VD है. ये आपके पास V out है जो कि हमने देखा था इस पोलैरिटी के साथ डेवलप हो रही है. सो VR D3 को निकालने का एक तरीका ये है कि इस ट्रायंगुलर लूप पे KVL अप्लाई किया जाए. So let's apply KVL along this closed path. KVL can be applied across any closed path, so this is a suitable choice. So ज़रा देख के बताइए इसमें क्या आ जाएगा आपके पास. ये देखें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. So by KVL along this triangular loop, one can see that VR D3 is equal to V out plus VD. जी देखिए, do you agree with this KVL? KVL से आप देख सकते हैं सब लोग के इसी तरह ही बनना चाहिए. Yes sir. So अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि पॉजिटिव स्विंग के केस में V out is equal to Vs minus 2 VD. So the output is 2 voltage drop down relative to the input signal. So let's substitute this into the expression for VRD. So we have VRD3 is equal to Vs minus 2 VD plus VD, or we can rewrite it as Vs minus VD. And PIV is the maximum of this voltage. So PIV is equal to maximum Vs minus VD. So Vs का maximum, Vs is a sinusoid, so the maximum value of the sinusoid is its peak value. So Vs का maximum is capital Vs, which is its peak value, minus Vd. So this gives us the PIV for diode D3. So diode D3 का PIV आपके पास आया है Vs minus Vd. So this is the peak inverse voltage that will appear across the diode D3 when it is reverse biased. Similarly, using the similar method, आप बाकी तमाम diodes के लिए भी PIV निकाल सकते हैं. Because of the symmetry of the circuit, you will get the same expression.
सो प्रैक्टिस के लिए आप बाकी फॉर एग्जांपल D1 D4 का भी निकालिएगा और यू शुड बी एबल टू रीच एट द सेम रिजल्ट PIV इज इक्वल टू VS माइनस VT। अगर आपने D1 का निकालना है तो उसके लिए नेचुरली आपने नेगेटिव स्विंग में बात करनी है और नेगेटिव स्विंग को लेकर उसमें कंप्यूटेशन करनी है। So PIV for the bridge rectifier हमने निकाला है VS minus VD and PIV for full wave rectifier with center tap transformer last time हमने determine किया था इसको that was 2VS minus VD. So comparing the two you can see that for a bridge rectifier the requirement for PIV is smaller, typically almost half of the PIV required for center tapped based full wave rectifier. So ये ब्रिज रेक्टिफायर का अनदर एडवांटेज है कि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो डायोड्स रिक्वायर्ड हैं उसमें PIV की रिक्वायरमेंट कम है। सो दिस इज अनदर एडवांटेज फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर द सेंटर टैप्ड बेस्ड फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेक्टिफायर विद अ फिल्टर कैपेसिटर which is also called a peak rectifier. So any rectifier can be converted into a peak rectifier by just placing a capacitor across the load resistor. So let's see कि ये कैपेसिटर की प्लेसमेंट से हमें क्या एडवांटेज मिलता है और उसके एनालिसिस हम किस तरह कर सकते हैं। सो रेक्टिफायर के केस में हमने देखा है कि रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट अ जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म इनटू अ नॉन जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म, और in other words you are getting a unipolar output voltage as a consequence of the rectifier. However, this output voltage जो है it is still pulsating. It varies between a peak value and zero and is not readily usable as a DC source for electronic circuits. So इसको further processing की ज़रूरत है, अभी ये ready नहीं है for the usage for powering up the electronic devices. सो इसमें फर्दर हमें प्रोसेस इसे करने की ज़रूरत है। सो वी वुड लाइक कि ये जो पल्सेटिंग नेचर जो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपके पास इस किस्म की आउटपुट आई है विच इज़ वेरिंग बिटवीन सम पीक वैल्यू एंड ज़ीरो, इसको हम फर्दर स्मूथ आउट करें और हम चाह रहे हैं कि इसकी वेरिएशन किसी तरह हम रिस्ट्रिक्ट करें बिटवीन टू नंबर्स। So for that purpose we make use of a capacitor across the load, and when we place a capacitor across the resistor we call it a peak rectifier. So a rectifier with a filter capacitor is called a peak rectifier. So first हम इसमें एक simple case देखते हैं without load और उसके बाद फिर हम actual case की तरफ जाते हैं। First to simplify things let's see कि अगर आप डायोड के साथ resistor नहीं लगाते just capacitor लगाते हैं तो what is the output, and अगर वो हमें promising नज़र आती है तो then we will proceed with the actual circuit where you have a resistor and a capacitor. So let's first consider a simplified circuit. So we have a diode and we have a capacitor. Obviously ये circuit की उस तरह की practical advantage नहीं है क्योंकि हमने किसी load को drive करना था, वो इसमें नहीं है, but we would like to first analyze a very simple thing and see whether we get some reasonable results or not. So ये सर्किट है आपके पास अभी जो इसके हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। फॉर सिंप्लीफिकेशन वी विल एज्यूम कि ये आइडियल डायोड है एंड लेटर ऑन हम इसको कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से एक्सटेंड कर देंगे। So at the moment let's assume it's an ideal diode, which means for the purpose of analysis if the diode is forward biased we can just replace it by a short circuit, and if we found out that the diode is reverse biased we will replace it with an open circuit. सो आइडियल डायोड आप रिकॉल करें हमने पहले भी कहा था कि जब हमने कोई नया सर्किट कोई नया कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होता है तो समटाइम्स वी यूज़ आइडियल डायोड, और उसके बाद एक्सटेंडिंग द रिजल्ट्स टू अ प्रैक्टिकल डायोड विद कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल इज़ वेरी इजी। इस सर्किट में हम बाद में रिप्लेस कर देंगे वी आउट इज इक्वल टू वी आई माइनस कैपिटल वी टी। सो वो लेटर ऑन हम एक्सटेंड कर देंगे और इसको कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल की बेसिस पे लेके चलेंगे। एट द मोमेंट लेट्स अज्यूम कि ये आइडियल डायोड है। सो वी हैव अप्लाइड दिस साइनसॉइड। सो लेट्स अज्यूम कि इनिशियली कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड। सो हमने ये साइनसॉइड सिग्नल जो है इनपुट पे दी है, ये वी आई हमने अप्लाई की है
at t is equal to 0. So let's assume कि initially capacitor is discharged. So initially capacitor, ये हमने voltage है, ये आपके पास time है इस axis पे, ये voltage जो है इसको हम VI कह रहे हैं, and let me plot the output voltage in blue color. जी, what do you expect? Initially capacitor discharged है और t is equal to 0 प्लस के ऊपर आप देख रहे हैं कि now VI is getting positive. So ये आइडियल डायोड मॉडल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. ये नोड जो है VI है and this node voltage is Vout. So initially capacitor is discharged, which means Vout must be equal to 0 initially, and VI is exceeding 0. What do you expect? Diode का क्या state होना चाहिए? Should it be forward biased or reverse biased when VI is positive? यहाँ कहीं हमने just t is equal to 0 को क्रॉस किया. t is equal to 0 प्लस पे what do you expect? Forward biased, sir. Forward biased, right? So diode is forward biased, which means since we are using ideal diode model, diode for the purpose of analysis, diode को हम short circuit से indicate करेंगे and Vout will be equal to Vi, which means output is something like this. और जैसे जैसे आप voltage बढ़ाते जाएंगे, diode will still stay forward biased and output Vout will be equal to Vi. So if diode is forward biased, Vout is equal to Vi, and we are getting this output. So this is true for the till the peak. What will happen after the peak? After the peak आप क्या expect कर रहे हैं? जी, will the diode still stay forward biased after this peak value? Yes, sir. After the peak value देखिए कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो गया. लेट मी से कि ये कोई वैल्यू है, लेट से कि 5 वोल्ट्स है. सो आउटपुट इज एट 5 वोल्ट्स. हाउएवर इनपुट जो है वो रिड्यूस हो रही है. सो इनपुट लेट से 4.5 वोल्ट है. यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डायोड की क्या स्टेट होनी चाहिए इस सिनेरियो में जब आपके पास आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर की वजह से 5 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, जबकि इनपुट वोल्टेज जब पीक से कम होना शुरू हो गई है. इनपुट वोल्टेज इज नाउ लेट्स से 4.5 वोल्ट. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? शुड द डायोड बी फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड? सर रिवर्स हो जाएगा, कैपेसिटी रिवर्स हो डिस्चार्ज होगा जाएगा. तो. सो डायोड जो है रिवर्स हो गया. और सिंस यहाँ पर हमने कोई आउटपुट पे कोई लोड नहीं लगाया हुआ, आइडियल कैपेसिटर हम एज्यूम कर रहे हैं विच इज रिटेनिंग द चार्ज फॉर एवर, ऑल्दो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली ट्रू, but for simplification we are assuming this is an ideal capacitor. So that means if this is an ideal capacitor, अब इसके बाद फिर this ideal capacitor will maintain the output voltage and the output voltage will stay fixed at 5 volts, while this ये आपके पास कर्व आएगा, ये it will stay smaller until this peak value, और ये 5 वोल्ट ही रहेगा. तो ये आपके पास इस तरीके की आउटपुट आ जाएगी. So because of the capacitor it will stay at 5 volts, right? So this gives us very encouraging results, although this is not a practical circuit क्योंकि हमने लोड नहीं लगाया हुआ, but still it gives us some insight के this sort of topology will be useful. Placing a capacitor across the load will help us in achieving the desired goal towards this horizontal line, towards this DC output voltage. क्योंकि आप देख सकते हैं sort of DC produce होगी, although यहाँ पर R नहीं लगा हुआ, so this is not that practical for powering up the electronic devices, but it gives us motivating results. Okay, this type of topology will help us to achieve the desired goal of achieving the final DC circuit. जी, ये सर्किट क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन हो? Okay, next let's move to the more practical scenario. So in the more practical scenario, we are placing a resistor R across the capacitor. So this is our half wave rectifier with a capacitor across the load. ठीक है, जस्ट वही हाफ वेव रेक्टिफायर है जो पहले हम यूज़ कर रहे थे, जस्ट हमने एक एडिशनल कैपेसिटर यहाँ पर लोड के साथ पैरेलल में प्लेस कर दिए. तो इस किस्म के सर्किट को वी कॉल इट अ पीक रेक्टिफायर. So let's consider this situation. Again, the same input signal. Let's apply the same input signal here. Again, let's assume that initially the capacitor is discharged. So initially output voltage is 0. So V out at t is equal to 0 minus
is equal to 0 because we are saying कि capacitor is initially discharged. Again, let's assume कि ideal diode model हम use कर रहे हैं for simplification to understand the circuit better, and later we will extend this idea to a practical diode by incorporating the constant voltage drop model. So this is a situation that we have. ये आपके पास input signal है जो आपने apply किया हुआ है. ये आपके पास VI है. Let's see कि output voltage क्या होगी. So initially capacitor discharged है, right? So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि initially V out is equal to 0. So as soon as you apply a positive VI, the diode will become forward biased, right? And V out will become equal to VI. जी ये देख सकते हैं सब लोग, इससे एग्री करते हैं. अब टिल द पीक वैल्यू सेम सिचुएशन यहाँ पर भी फॉलो होनी चाहिए. जी डू यू एग्री विद दिस कर्व? देखिए जरा ठीक लग रहा है? यस सर. ये ब्लू में जो है हम वी आउट को प्लॉट कर रहे हैं. सो अब बताइए कि ये पीक के बाद क्या होगा. व्हाट विल हैपन आफ्टर द पीक? डायोड की क्या स्टेट होनी चाहिए आफ्टर द पीक? जी वंस यू एक्सीड द पीक, पीक से जब आप आगे चले जाएंगे टाइम में तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? रिवर्स हो जाएगा. डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, राइट? सो अगर डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, सो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस यू आर जस्ट लेफ्ट विद दिस सर्किट, क्योंकि डायोड को तो आपने एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया ना, तो यू आर लेफ्ट विद दिस टाइप ऑफ सर्किट. सो अब वी आउट की क्या एक्सप्रेशन होनी चाहिए? इस तरह का सर्किट आप पहले भी स्टडी करते आए हैं अपने सर्किट के पिछले कोर्सेज में. सो ये आपका इसका किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए? जी किसी टाइम कांस्टेंट से आउटपुट वेरी करेगी. किस तरह वेरी करती होती है इस तरह के सर्किट में आउटपुट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आउटपुट की क्या रिलेशन आएगी इधर? ये तो हमने बात कर ली ना कि डायोड हैज बिकम a reverse biased diode, so as a consequence we can replace it with an open circuit. So if this diode has now been replaced by an open circuit, so you are left with this RC circuit. Just RC circuit एक आपके पास पीछे रह गया है जिसके क्रॉस आप आउटपुट V out देख रहे हैं. So हमें पता है कि since capacitor has been charged, so इस केस में ये आपने VP के बाद ये सिचुएशन आई है. So the voltage across the capacitor V out is equal to VP. So ऐसे सिचुएशन में किस तरह का प्रोफाइल फॉलो करते हैं? आगे मैं किस तरह की वेवफॉर्म ड्रॉ करूं? उसके लिए आई नीड एन इक्वेशन फॉर दिस सर्किट, राइट? सो अगर आप रिकॉल करें तो ये किसी टाइम कांस्टेंट से कोई डिके देता होता था, तो ये किस तरह की इक्वेशन आती थी? जी रिकॉल कर सकते हैं? RC is equal to 1/2 pi f. नहीं, वी आउट की बात हो रही है ना. वी आउट किस तरह का आना था? एक्सपोनेंशियल डिके आता होता था ना, इफ यू रिकॉल, और वो किसी टाइम कांस्टेंट से आता था जो हम टाउ से डिफाइन करते थे. टाउ इज इक्वल टू आर सी से. सो वी आउट को क्या लिखा जाए? इनिशियल वैल्यू वीपी टाइम्स वीपी इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एक्सपोनेंशियल ऑफ, जी एक्सपोनेंशियल ऑफ व्हाट? टी बाय टाउ था शायद. जी माइनस टी बाय टाउ होता था क्योंकि इट्स अ डिके, इट कांट राइज बिकॉज ये कोई पैसिव स्ट्रक्चर है. सो इट्स अ डिके. सो वीपी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाय टाउ. सो एक टाइम कांस्टेंट से वो डिके करता था, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी. सो दिस इज व्हाट वी हैव. सो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये आपके पास कोई इस किस्म का डिके आना है, ठीक है? इट विल डिके एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट विल इंडिकेट कि कितनी देर में डिके होगा और कितना डिके होगा. दैट विल बी इंडिकेटेड बाय दिस टाइम कांस्टेंट आर सी. सो ये इस किस्म का कोई डिके आएगा, राइट? सो ये डिके आता जाएगा बिकॉज इस पूरी ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वेव फॉर्म है विच इज वी आई, इट इज स्मॉलर देन दिस ब्लू वेव फॉर्म. व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट? जी इस पॉइंट के बाद टाइम में अगर आप देखें तो क्या होगा? डू यू एक्सपेक्ट कि इसके बाद स्टिल डायोड रिवर्स बायस्ड रहेगा और इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड? यहाँ तक तो डिके है ना, आपका डिस्चार्ज इंटरवल है. इसके बाद क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जी अगेन देखिए, ब्लू वेव फॉर्म आपकी वी आउट है, रेड वेव फॉर्म जो है आपकी वी आई है.
सो इसके बाद अगर आपने देखना है तो यू नीड टू सी कि वी आउट या वी आई में से कौन सा बड़ा है। तो बताइए ज़रा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। यहाँ पर देखिए रेड इज नाउ इंक्रीजिंग, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा एंड द डायोड विल स्टे फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा एंड अगेन वी आउट विल बिकम इक्वल टू वी आई एंड द डायोड विल स्टे फॉरवर्ड बायस्ड until this peak value, and after the peak again diode will become reverse biased and you're left with just this RC circuit, and again there will be exponential decay because of tau of this circuit, and again this will repeat itself. अगेन आपका चार्जिंग इंटरवल आएगा, एक डिस्चार्जिंग इंटरवल आएगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है दिस कैन बी कॉल्ड योर डिस्चार्ज इंटरवल, क्योंकि इस केस में द डायोड इज नॉट ड्राइविंग द सर्किट, सो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज इंटरवल. So the diode is off in this duration. Diode has been reverse biased during this duration. However, ये वाली जो duration है, this can be called your conduction interval. This is conduction interval. Why? Because इस duration में diode is conducting, diode is forward biased and is providing current to both the capacitor and the resistor. So the conduction interval is quite small. Discharge interval जो है वो significantly large है. सो स्मॉल ड्यूरेशन में डायोड ने सारा करंट प्रोवाइड करना है, जिसमें उसने कैपेसिटर को चार्ज भी करना है और लोड को भी ड्राइव करना है, और उसके बाद ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इंटरवल यू आर लेफ्ट विद जस्ट द कैपेसिटर, सो दैट कैपेसिटर विल बी ड्राइविंग द लोड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इंटरवल. अब ज़रा ये देखकर बताइए कि इस कर्व को अगर मैं लेट से मैं ये चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन ये कर्व इस जगह पे कहीं कट करे, व्हाट शुड आई डू. टाउ को क्या करना चाहिए मुझे. Should I increase tau or should I reduce tau? ये वेवफॉर्म इंस्टेड ऑफ दिस ब्लू वे आउटपुट वेवफॉर्म, मैं ये जो ब्लैक में मैंने इंडिकेट की है ये मैं अचीव करना चाहता हूँ. सो व्हाट शुड आई डू. शुड टाउ बी इंक्रीज्ड और टाउ बी रिड्यूस्ड. हाँ जी, टाउ क्या इंडिकेट करता था. टाउ इंडिकेट करता था कि एक सर्टेन डिके आप कितने टाइम में अचीव करते हैं. सो मैं अगर ये वेवफॉर्म करना चाहता हूँ, अगर मैं टाउ बढ़ाऊंगा तो उसका क्या मतलब था कि वो सर्टेन वैल्यू ऑफ डिके जो है आप ज़्यादा टाइम में अचीव करेंगे, राइट. सो ये वेवफॉर्म मैंने अचीव करनी है. शुड आई इंक्रीज टाउ और शुड आई रिड्यूस टाउ. इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज करना चाहिए ना, क्योंकि टाउ इंडिकेटर ही है ना कि आप वो जो आप निकालते थे कि एक्सपोनेंशियल -1 पे कब पहुंचेगा. आई थिंक ये कितना बनता था, 37% तकरीबन बनता था ये. सो जब आप टाउ बढ़ाते थे तो आप इधर लेटर ऑन पहुंचते थे. सो यू शुड इंक्रीज टाउ ताकि वेरिएशन कम आए. सो इस वेरिएशन को कम करने से प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है. देखिए कंडक्शन इंटरवल आपका काफ़ी स्मॉल हो गया. सो अब जो करंट की रिक्वायरमेंट है जो आपने कंडक्शन इंटरवल के दौरान देनी है, जिसकी मदद से आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है, वो रिक्वायरमेंट्स जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है. ठीक है. तो इस पे हम मज़ीद बात आगे करेंगे. अभी सिर्फ ये नोट करें कि अगर आपने इस वेरिएशन को कम करना है तो यू नीड टू इंक्रीज टाउ. सो AC स्टेडी स्टेट वेव फॉर्म में अभी तो हमने इनिशियली बिल्कुल डिस्चार्ज कैपेसिटर का केस लिया था, लेकिन अगर आप स्टेडी स्टेट वेव फॉर्म को प्लॉट करें तो यू कैन सी दैट कि दिस पॉइंट इज रिपीटिंग इटसेल्फ. So this is steady state. So this is your conduction interval. This duration or this duration is called the conduction interval. This whole duration is called the discharge interval. So from the plot you can see that the discharge interval is the time period minus del t. The time period minus the conduction interval is actually your discharge interval. सो डिस्चार्ज इंटरवल जितनी ड्यूरेशन के लिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, लोड को ड्राइव करता है, दैट इज कैपिटल टी माइनस डेल टी. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल. ठीक है. ये जो वेरिएशन आती है आपकी पीक से कितना रिड्यूस होती है इस पॉइंट तक वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड वी आर और द रिपल वोल्टेज. इसको हम रिपल वोल्टेज कहते हैं. दिस इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज. So VR is called ripple voltage. So initially आप VP पे थे और इस पे एंड ऑफ द डिस्चार्ज इंटरवल पे आप पहुंच गए वोल्टेज VP माइनस VR पे. तो यहाँ पर अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो दिस इज एक्चुअली VR. सो दिस शुड बी VP माइनस VR.
VR is the ripple voltage. ठीक है, ये वेव फॉर्म क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन हो? सर वो जो शुरू की पीक तक जो एक इंक्रीज था या चार्जिंग का था, वो उसके एप्लीकेशन में नहीं कंसिडर होगा? वो एक्चुअली आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ना, उसके बाद शुरू में कुछ साइकिल्स में वो फुली चार्ज हो जाएगा और ये उसके बाद आपका ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये आपकी स्टेडी स्टेट एसी वेव फॉर्म है। तो इनिशियली चंद साइकिल लगेंगे, अगर कैपेसिटर छोटा है तो नॉर्मली वो एक आधे साइकिल में ही हो जाता है, अगर बड़ा है तो उसे चंद साइकिल लगेंगे चार्ज होने में। लेकिन उसके बाद आपका जो स्टेडी स्टेट वेव फॉर्म है, उसकी हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये आपकी स्टेडी स्टेट वेव फॉर्म है जिसकी बेसिस पे एक्चुअली उसने बाद में चलना है। शुरू के चंद साइकिल्स में उस तरह की आपको वेव फॉर्म मिलेगी, उसके बाद दिस इज व्हाट वी विल हैव। सो जैसे ये पावर सप्लाई आपने ऑन की शुरू के पहले 2-3 साइकिल्स में के बाद वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टरवर्ड्स। सो दैट्स व्हाई वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस। ओके सर। सो ये वो इफेक्ट है जो कि हमने पहले भी देखा है टाओ को बढ़ाने से। सो टाओ अगर बहुत स्मॉल आपने रखा हुआ है तो ये देखिए आपके पास इस तरह की वेव फॉर्म आ रही है। सो यू कैन सी दैट कि दिस इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द रेक्टिफायर वेव फॉर्म जो हमने पहले स्टडी की थी। सो कैपेसिटर इज नॉट डूइंग मच हियर, क्योंकि आपने टाओ इतना स्मॉल रखा हुआ है कि कैपेसिटर जैसे ही कैपेसिटर पे लोड पड़ता है फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर अगर आप एक स्मॉल कैपेसिटर रखते हैं तो देन यू हैव अ लार्ज रिपल। अगर आप थोड़ा लार्ज कैपेसिटर रखते हैं तो देन यू विल गेट अ स्मॉलर रिपल। तो यहाँ पर उसने आर सी के बजाय जस्ट सी पे कॉन्सेंट्रेट की है। सो दिस इज बिकॉज वी नॉर्मली है आर गिवन विद कि इतने लोड रजिस्टर के लिए डिज़ाइन किया जाए। सो लोड रजिस्टर इज नॉट योर डिज़ाइन पैरामीटर, कैपेसिटर इज योर डिज़ाइन पैरामीटर। कैपेसिटर आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन लोड रजिस्टर तो यूजली आपको गिवन होगा ना, कितने लोड के लिए आपने फॉर एग्जांपल सेल फोन चार्जर डिज़ाइन करना है। सो लोड रजिस्टर इज यूजली डिफाइंड, और वो आप सर्किट डिज़ाइनर के पास वो पैरामीटर नहीं होता कि वो उसके साथ प्ले अराउंड कर सके, वो गिवन स्पेसिफिकेशन है। So the parameter that you can change or adjust according to the needs is the capacitance. So that's why हम यहाँ पर कह रहे हैं कि capacitance को very small रखें तो ये होगा, small रखें तो ये होगा, large रखें तो ये होगा। So capacitance obviously जितना large होगा उतना large आपको RC मिलेगा। So time constant को large रखने के लिए आपको large capacitor रखना पड़ेगा, time constant को small अगर आपने रखना है तो आपको small capacitor रखना पड़ेगा। सो इस फंडामेंटल यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसमें ऑब्वियसली आपको एक रीजनेबली लार्ज कैपेसिटर चाहिए, अदरवाइज आप इस प्रोसेस का फायदा नहीं उठा सकेंगे। So we are saying that this is the conduction interval. So during the conduction interval, current will flow through the diode. So इस किस्म के पीक करंट्स आपको मिलेंगे। ये जो ब्लैक में हमने शो की है, दिस इज द डायोड करंट ड्यूरिंग द कंडक्शन इंटरवल। एंड ये जो हमने शो की है ब्लू में कर्व, दिस इज द आउटपुट वी आउट या लोड करंट। एक्चुअली ये लोड करंट है, आउटपुट नहीं है, लेकिन बाय ओम्स लॉ आउटपुट एंड लोड करंट की आप देख सकते हैं कि शेप एक ही तरह की है। ठीक है, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट करंट। So what we are saying is that during the conduction interval, during this duration, diode is providing us with both the currents. It is charging the capacitor. It is also driving the load. During the discharge interval, we are just left with the capacitor. So during the discharge interval, capacitor है जो ये सारा current provide कर रहा है, क्योंकि diode तो disconnect हो गया। So diode के peak currents जो हैं यहाँ पर flow करेंगे। सो डायोड के ये देखें सिग्निफिकेंटली लार्ज करंट होगा, वो जो नॉर्मल आपका लोड करंट है उससे सिग्निफिकेंटली लार्ज करंट फ्लो करेगा ड्यूरिंग द कंडक्शन इंटरवल। अब बेस्ड ऑन दिस कैन यू टेल मी कि ये हम बिल्कुल स्मॉल क्यों नहीं रख रहे? हम यहाँ पर एक रिपल वोल्टेज वी आर को ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो हम क्यों नहीं रख रहे? वाई वी आर सेइंग कि ये हमने स्मॉल रिपल रखनी है और बाद में एक और सेकंड स्टेज हमने इंट्रोड्यूस करनी है विच इज़ अ रेगुलेटर स्टेज टू रिड्यूस दिस रिपल फर्दर। वाई आर वी टेकिंग दिस टू स्टेप अप्रोच कि पहले हम फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं और वी आर को एक फाइनाइट वैल्यू रखते हैं एंड देन वी यूज अ रेगुलेटर टू फर्दर रिड्यूस इट? Why don't we just take a one step approach and just reduce VR to the required specification using just this capacitor by putting a capacitor of very large value? Why don't we do that? Why are we following this two step approach? Ji, any idea?
चलिए इसको इस तरह आंसर करेंगे, अगर आप कैपेसिटर बहुत बड़ा कर देंगे तो कंडक्शन इंटरवल के साथ क्या होगा, और ये जो पीक करंट्स ड्यूरिंग द कंडक्शन इंटरवल फ्लो कर रही हैं इनके साथ क्या होगा। हाँ जी, एनी आइडिया। सर ये पीक्स और भी इंक्रीज हो जाएंगी। एग्जैक्टली, तो ये पीक्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगी बिकॉज दिस कंडक्शन इंटरवल विल बी रिड्यूस्ड टू अ वेरी स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में दिस पॉइंट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, and this point can only repeat itself if you are compensating for the charge lost during the discharge interval. ड्यूरिंग द कंडक्शन इंटरवल आपने सारा जो चार्ज लूज हुआ है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इंटरवल उस सारे को कॉम्पनसेट करना है। सो अगर आप एक ही स्टेप में ये सारा गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे तो दिस कंडक्शन इंटरवल विल बी रिड्यूस्ड टू वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दिस पीक्स विल बी वेरी हाई पीक्स। सो मे बी आपको इस तरह का डायोड मिले ही ना जिसके लिए आपने वो डिज़ाइन कर लिए। सो आपने ये देखना है कि आपको जो डायोड्स अवेलेबल हैं वो कितने पीक करंट्स टॉलरेट कर सकते हैं। सो उसकी बेसिस पे आपने इस नंबर को रीजनेबल रखना है, और वी आर एक फाइनाइट वी आर आपने यहाँ पर स्टेप में अचीव करनी है, और फर्दर वी आर को आपने इम्प्रूव करना है बाय यूजिंग अ वोल्टेज रेगुलेटर। रिकॉल करें जब हम जेनर डायोड बेस्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स को स्टडी कर रहे थे तो हमने लाइन रेगुलेशन की टर्म डिफाइन की थी। So line regulation is defined as the change in output voltage relative to the change in supply voltage. So this will be fed as the supply voltage into the Zener diode based voltage regulator, और Zener diode को आप डिजाइन करेंगे और उसकी मदद से ही लाइन रेगुलेशन अपने डिजायर्ड अचीव करेंगे। So this will be the variation in the input voltage in the supply voltage, and based on this variation you are going to drive the regulator, और regulator की output पे आप इसको further minimize कर देंगे using the regulator principle. So that's why practically speaking we need this two step approach. We first reduce ये एक reasonable VR पहले step में हम achieve करेंगे using the capacitor, कीपिंग इन माइंड के हमने अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कोई रियलिस्टिक हो हमारे रिजल्ट्स। हम इस तरह का करंट ना कह दें कि उस तरह का डायोड दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। तो आप पावर सप्लाई डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो इट शुड बी इकोनॉमिकली वायबल। आप अगर वो एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई डिज़ाइन कर रहे हैं तो बाकी कंप्यूटर से भी महंगी हो जाए तो दैट्स देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। उसका एक रीजनेबल इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट है, यू हैव टू अबाइड बाय दैम। सो आपने ऐसा डायोड चूज़ करना है जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो और एक रीजनेबल वैल्यू हो। सो उसमें करंट की एक रीजनेबल वैल्यू आपको मिले, और उसके बाद सेकंड स्टेप में यूजिंग अ वोल्टेज रेगुलेटर you will achieve the desired line regulation, the desired variation in output voltage relative to the supply voltage variation। और अगर ये भी नहीं इनफ तो एक और स्टेज ऑफ रेगुलेटर आप एक एडिशनल स्टेज ऑफ रेगुलेटर आप आउटपुट पे यूज कर सकते हैं। सो ये ऊपर वाला जो है हमने वोल्टेज की वेरिएशन देख ली, नीचे वाला जो है आपके पास करंट की वेरिएशन है। सो करंट की हाई स्पाइक्स आनी है ड्यूरिंग द कंडक्शन इंटरवल बिकॉज दीज हाई स्पाइक्स आर रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज द कैपेसिटर अगेन फॉर द नेक्स्ट डिस्चार्ज साइकिल। और आउटपुट वोल्टेज जो है आपकी इसी किस्म की है, आउटपुट करंट आपका इसी किस्म का आएगा बाय ओम्स लॉ। सो द shape of the output voltage V out and the output current, you can see that they are the same and they should be the same as a consequence of Ohm's law। ठीक है जी, ये वेव फॉर्म दोबारा से गौर से देख लें और फिर इसके बाद हम आगे एक्चुअली इनकी एक्सप्रेशंस पे जाते हैं। अभी तक हमने इसे क्वालिटेटिवली ट्रीट की है कि वो बेसिक फिनोमेना क्या है, किस तरीके से वो चीज़ काम करती है। आगे हम इसको क्वांटिटेटिवली ट्रीट करेंगे एंड वी विल डिटरमिन एक्सप्रेशंस फॉर वी आर द रिपल वोल्टेज डिफाइंड हेयर, फॉर del t the conduction interval, the duration for which the diode conducts, the diode becomes forward biased, द एवरेज करंट ड्यूरिंग द कंडक्शन इंटरवल के दौरान जो करंट फ्लो की है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिटरमिन, एंड फाइनली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट flowing through the diode at the start of the conduction interval। So at the very start of the conduction interval क्या exactly करंट की वैल्यू है, ID max क्या है। So इनकी हम expressions next हम derive करना चाहेंगे। So we'll determine expression for VR, we will determine expression for VR is the ripple voltage defined in this way। We will determine an expression for conduction interval del t,
we are going to determine an expression for ID average, and we are going to determine the expression for ID max. So ID max is the value of the current at the very start of the conduction interval. ID average is the average value. सिर्फ कंडक्शन के दौरान हम देख रहे हैं, बाकी केसेस में तो वो जीरो है. सो सिर्फ कंडक्शन इंटरवल के दौरान हम एवरेज वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि वो क्या है. सो ये चीज़ें हमें पता होंगी तो देन वी कैन डिज़ाइन दिस सर्किट. और एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू, एक्चुअल कैपेसिटर कितना चाहिए, एक्चुअल कंडक्शन इंटरवल कितना अचीव होगा, एक्चुअल आईडी मैक्स आपको कितना होगा, ताकि आपको आईडी मैक्स पता लग जाए, ताकि आप अप्रोप्रिएट डायोड चूज़ कर सकें. सो डायोड की जो करंट की रेटिंग है, इट शुड बी लार्जर देन दिस रिक्वायर्ड आईडी मैक्स. अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली वो चंद साइकिल्स के बाद डायोड ख़राब हो जाएगा, डायोड विल गेट डैमेज्ड आफ्टर अ फ्यू साइकिल्स. सो यू मस्ट इंश्योर कि जो डायोड आप चूज़ करें वो उस आईडी मैक्स से बड़ी रेटिंग का डायोड हो. ठीक है जी. सो दिस इज़ द वेव फॉर्म दैट वी हैव, और इसकी बेसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन द एक्चुअल एक्सप्रेशंस, ताकि हम सर्किट को डिज़ाइन कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद जी. ये वेव फॉर्म सबको क्लियर है? कंडक्शन इंटरवल सबको समझ आ गया, डिस्चार्ज इंटरवल क्लियर हो गया, रिपल वोल्टेज, ये मैक्सिमम क्यों है यहाँ पर करंट, ये करंट सिर्फ इस ड्यूरेशन के लिए क्यों फ्लो कर रहा है. आर यू एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस? हाँ जी, ये इसको देख लें ज़रा, अगर ये क्लियर नहीं है तो बताइए. ओके, फिर हम रिपल वोल्टेज नेक्स्ट करते हैं. बात हमने कर ली है. ये डिके की भी बात हम कर चुके हैं. Okay, let's now determine expressions for VR, del T, and average and peak diode currents. Let's start with an expression for the ripple voltage VR. So we are saying okay, this is the conduction interval. It's the interval, it's the duration for which the diode conducts. And after this we are getting a discharge interval. So discharge interval is the duration of time for which the capacitor is discharging, for which the diode is reverse biased, and we are left with just an RC circuit, and we are getting capacitor के across discharge हो रहा है, and we are getting a decay expression. So V out can be defined by this exponential decay during the discharge interval. So ये आपके पास discharge interval. So during the discharge interval, V out can be given as, क्योंकि at the very start of the discharge interval, the voltage V out is equal to Vp. So during the discharge interval, V out is Vp, and then the exponential decay, exponential of minus t divided by the time constant tau, which is equal to RC for this RC circuit. So this is what we have, and we are saying that this expression is valid for the entire duration of the discharge interval. अगेन आप देख सकते हैं कि जो डेल टी की वैल्यू है, या जो वी आर की वैल्यू है, या जो आई डी मैक्स और आई डी एवरेज की वैल्यू है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आपने रेफरेंस कहाँ पर चूज़ किया है, टी इज इक्वल टू जीरो आपने किस जगह पे डिफाइन की है. ठीक है, दैट विल नॉट मैटर. आप टी इज इक्वल टू जीरो जहाँ मर्जी इनपुट साइनसॉइड के डिफाइन कर लें, you will get the same expression for VR, you will get the same expression for del T, we are going to get the same expression for ID average and ID max. So the reference of the input sinusoid, whether where we define T is equal to 0, doesn't really matter as far as the derivation of these expressions is concerned. So we can define T is equal to 0 at an appropriate point of convenience. So जहाँ पर हमें convenient लगता है वहाँ पर हम T is equal to 0 define कर सकते हैं. पिछली प्रॉब्लम्स में हम t इज इक्वल टू जीरो ज़्यादातर डिफाइन कर रहे थे एज अ साइनसॉइड, यहाँ की डिफाइन कर देते थे. इस केस में बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग एट द पीक, पीक के बाद डिस्चार्ज इंटरवल आता है, पीक से थोड़ा पहले आपका कंडक्शन इंटरवल स्टार्ट होता है, पीक के ऊपर कंडक्शन इंटरवल स्टॉप होता है और डिस्चार्ज इंटरवल स्टार्ट हो जाता है. सो समथिंग इज हैपनिंग एट द पीक, सो इट्स मोर कन्वीनियंट टू चूज t इज इक्वल टू जीरो एट द पीक ऑफ द इनपुट साइनसॉइड. और इन अदर वर्ड्स vi को आप अगर Vp को साइन ओमेगा टी लें तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट. आप साइन ओमेगा टी लेके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आप साइन ओमेगा टी लेंगे, फिर इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर आप बात करेंगे डिस्चार्ज इंटरवल. सो इट्स मोर कन्वीनियंट टू चूज द पीक
as the reference point, peak as t is equal to 0. So peak पे अगर आप vertical axis define कर दें तो it would be much more convenient choice. So we are saying we are going to define take Vi is equal to Vp cos omega t, which means Vi starts at the peak and goes like this. So इसको हमने reference ले लिया. ठीक है, ये पहली बात हमने कर ली. So that means कि ये जो आपके पास यहाँ पर हमने vertical axis define कर लिया. So this is your vertical axis, right? So अब आप देखें तो अगर ये vertical axis है तो डिस्चार्ज इंटरवल की क्या ड्यूरेशन है? डिस्चार्ज इंटरवल स्टार्ट्स एट, जी देख के बताइए, डिस्चार्ज इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है? स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड एंड्स एट, हाँ जी बताइए जरा, एंड कहाँ पर होता है? t इज इक्वल टू, हाँ जी कोई इसमें इनपुट दे सकते हैं? डिस्चार्ज इंटरवल किस पॉइंट पे एंड होता है? t इज इक्वल टू, जी देखिए इस पॉइंट पे एंड हो रहा है ना, तो बताइए जरा ये क्या वैल्यू है? Sir, t minus delta t. Exactly. So this is capital T minus del t. So we are saying that this expression, this exponential decay expression is valid for the entirety of this discharge interval. It starts at t is equal to 0 and ends at t is equal to capital T minus del t, which means this expression can be used to compute the output voltage at any value during this duration. So let's compute capital T minus del t पे क्या होगा? So V out at capital T minus del t, since this expression is valid for the entire duration, t is equal to 0 पे भी valid है और t is equal to capital T minus del t तक valid है. So let's choose this point. ये point हमने क्यों choose किया है? क्योंकि इस पे हमें V out की value नजर आ रही है. So we can determine कि VR की क्या expression होगी. So Vp exponential of minus कैपिटल T माइनस डेल टी, मैंने T इज इक्वल टू कैपिटल T माइनस डेल टी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय आर सी. हाँ जी जरा प्लॉट से देख के बताइए वी आउट की क्या वैल्यू है? जी प्लॉट पे देखें वी आउट की क्या वैल्यू है? दिस इज Vp, दिस इज VR. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है आपके पास? व्हाट शुड बी दिस वैल्यू? T minus VR. Vp माइनस वी आर, राइट? Vp माइनस वी आर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वोल्टेज जो है अब एंड ऑफ द डिस्चार्ज इंटरवल पे, वो इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ डिस्चार्ज इंटरवल Vp थी, फिर एक्सपोनेंशियल डिके आया और डिके होती गई और एंड ऑफ द डिस्चार्ज इंटरवल पे द वैल्यू इज Vp माइनस वी आर. सो लेट्स मेक दिस सब्स्टिट्यूशन हियर. Vp माइनस वी आर इज इक्वल टू Vp एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस कैपिटल T माइनस डेल T डिवाइडेड बाय RC. So this is the expression that we have now for VR. इसको let's see कि इसको further simplify किया जा सकता है कि नहीं. ये बताइए कि कैपिटल T माइनस डेल टी यहाँ पर आ रहा है, तो इसको कुछ अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है. देखिए जरा क्या डेल टी सिग्निफिकेंटली स्मॉल है कैपिटल T से? कैन वी डू सम अप्रॉक्सीमेशन हेयर? अब आपके पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं. हाँ जी, एनी आइडिया क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ठीक है, इक्वल कर सकते हैं सर. हाँ, इसको हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. ये एक्चुअली एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपके पास आ चुकी है, अब जस्ट हम देखना चाह रहे हैं कि इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं. सो वी नोटिस्ड कि बाय डेफिनेशन दिस इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्किट कि डेल टी मस्ट बी वेरी स्मॉल रिलेटिव टू कैपिटल टी, अदरवाइज आपको वी आर बहुत लार्ज नंबर मिलेगा और वो कैपेसिटर लगाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा. सो इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्किट कि प्रैक्टिकली आप इस सर्किट को यूज़ कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है कि del t must be smaller than capital T. So this approximation is valid. So that means we have Vp minus Vr is equal to Vp exponential of minus capital T divided by Rc. So this is the expression that we now have. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्चुअली आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग Vr, लेकिन आपकी बुक ने चूंकि फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो लेट्स सी कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं. So we have Vp minus Vr
is equal to Vp exponential minus t divided by Rc. So further simplification किस बेसिस पे की जा सकती है? Look at this exponential. इसकी आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या हम कमेंट कर सकते हैं? Is it a small entity or not? यानी टाउ रिलेटिव टू कैपिटल टी क्या था? टाउ क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी कि टाउ relative to capital T क्या होना चाहिए? Should it be very large? Should it be very small? What is the requirement on tau? लार्ज था। So हमने कहा था कि tau should be very large relative to capital T, which means this argument of exponential is quite small. So we can have a series expansion. Series expansion से हम इसको expand कर सकते हैं and we can retain a first few terms just to get a simplified expression. So let's use the series expansion for the exponential because tau by RC is a small entity, is a small quantity. So as a consequence, we can expand the exponential and just retain the first two terms. हम कह रहे हैं कि t by tau is quite small. So square term and cube term, this is cube. Cube term and fourth order term and so on are significantly small. So as a consequence, further simplification is possible. So let's just retain the first two terms and make the substitution in this above expression. We get Vp minus Vr is equal to Vp minus T by Rc. So first term cancel out हो जाती है. So we are left with minus Vr is equal to minus Vp capital T by Rc, or we have Vr is equal to Vp capital T by Rc, and since T is equal to 1 by F, so we can also write it as FRC. So ये आपके पास एक simplified expression यहाँ पर आ गई after doing some approximations here. So VR is equal to, so this is an approximate expression. The exact expression was on the previous page. So VR is Vp divided by FRC. ठीक है जी. So ये हमने रिपल वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिए. नेक्स्ट हम कंडक्शन इंटरवल के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे. लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद फिर हम कंडक्शन इंटरवल की बात करते हैं. जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ?